See, we were dealing with how has HRM, the practice of human resource management, changed over the years, especially this industrial policy of 1991, which saw liberalization, privatization, and globalization. After that, HRM practices changed because the business pattern changed. So in order to keep the business pattern going according to the dynamism which was there in the external environment, the HR practices also had to change. Yes, we did it in LPG. How has been the impact of liberalization, privatization, and globalization? Today, the biggest thing, the most difficult thing that the HR manager faces today, and to formulate further HR practices are our management of workforce diversity. मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, व्हाट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मींस दैट योर वर्कफोर्स इज कंसिस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम various backgrounds, okay? Men, women, from professional people, technical people, blue collar, white collar, more learned, the level of education has gone up, and many more things. There are people who belong to various cultures. There are people who belong to various caste, various community. And not just this, there are people who belong to different nations. So we have to keep in mind that we need to be culturally sensitive towards these people and to keep them happy in the organization. One more aspect of workforce diversity which was not witnessed before is that the number of women who are taking up work has risen, right? The number of women who have taken up work and the number of women who are coming to even the managerial positions, to the top position, has increased. There are more number of women who are taking up business work. There are more number of people who are taking up work. And due to this, the HR policies have to be formulated according to the benefits of keeping in mind that there are many women employees in the organization. So, इतने बड़े वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फिलॉसफीज हैं जो हम यूज करते हैं. And remember that whatever you have written is not just there in HR. This is a philosophy. This is also valid in production. जब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, which is TQM. The second thing is quality circles. The third one is business process reengineering. And fourth one is restructuring. And there's also one more thing which is known as empowerment. Let's start with TQM. कॉपी में लिखा हुआ होगा TQM, चेक कीजिए. लिखा है? How to deal with various workforce diversities. लिखा है प्रिया? Did you write this? No. Okay, you first write down. How to deal with workforce diversity. या आप ऐसे लिख सकते हैं, how to deal with challenges of HRM in emerging trend. How to deal with challenges in HRM in emerging trend. First, write down TQM, Total Quality Management. TQM, Total Quality Management. Next, Quality Circles. QC, Quality Circles. Third, write down BPR, Business Process Re-Engineering.
Business process re-engineering. Next you write restructuring. Next you write empowerment. Done? Rest of you switch on your cameras, those who have just joined. See, you do not need to go into too much of details of whatever I have just made you write, but you need to understand it in relevance of the business around, okay, and HR practices. See, TQM का क्या मतलब होता है? TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. देखिए ये बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस चीज को ध्यान से सुनिए, हो सकता है आगे भी आपको अपने कोर्स में कहीं जानने को मिले. TQM is total quality management. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ फिलॉसफी. ये फिलॉसफी जापान से आई है. दिस फिलॉसफी हैज कम फ्रॉम जापान. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी. ठीक है, जापान की इकोनॉमी बहुत शैटर हो चुकी थी. तो जापान ने धीरे धीरे ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरह और भी बहुत सारे टर्म्स, कानबान, काइजन, ये इस तरीके के टर्म्स जो हैं वो जापान से आया है. And these qualities have worked, these terms and philosophies have worked wonders in business. America has adopted it and Indians are also adopting it because these have been found to be very, very successful. Total quality management का मतलब होता है, this is a philosophy which means कि there has to be a continuous improvement in the quality of the organization, both in terms of resources and human resources and other resources, in order to deliver value to the final goods and services. आपकी ऑर्गेनाइजेशन गुड्स डिलीवर करती है या सर्विसेज डिलीवर करती है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी क्वालिटी की हमेशा मॉनिटरिंग होती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में. आप कंटिन्यूअस ये चीज प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी बनाया और बंद कर दिया. You have to continuously look into what can be done to improve the quality of your delivery of goods and services. Understood? अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाएंगे. तो आप ये सब लिखना नहीं है, ये जस्ट हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होता है. सपोज see, I would want you all to participate here. हम लोग एक सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है, होटल इंडस्ट्री का मान लो. अच्छा, अभी विंटर्स आ रहा है तो हिल स्टेशंस पे विंटर स्पोर्ट्स, जहां जहां विंटर स्पोर्ट्स होता है, जैसे हिमाचल में सोलन में विंटर स्पोर्ट्स होता है, कश्मीर में कई जगह पे विंटर स्पोर्ट्स कराया जाता है, तो वहां पे होटल्स वगैरह और ऐसे अदरवाइज भी शिमला, मनाली, गैंगटॉक वगैरह, नैनीताल, होटल्स पूरा फुल रहेगा अभी विंटर्स के टाइम पे. अगर हम किसी एक स्टैंडर्ड बड़े होटल की एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि कोई भी बड़ा होटल जिसका जिसका चेन है अक्रॉस इंडिया, समथिंग विच इज ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स एक्सेलिंग इन द सर्विस सेक्टर, उसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में. क्या क्या किया जाना चाहिए, तुमको क्या लगता है कि क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि हमेशा उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहे. देखिए कुछ चीजें हैं जैसे कि अच्छा सर्विस देना है, या फिर रूम सर्विस है, क्लीनिंग है, ये सब तो कॉमन चीजें हैं जो सारे होटल्स करते हैं. लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि यू थिंक ऑफ द मीन्स एंड मेथड्स कि वो कैसे किया जाए, तो वो आप सोच के बताइए कि टोटल क्वालिटी इंप्रूव मैनेजमेंट यानी कि हर तरफ से ह्यूमन रिसोर्स के, और हम स्पेसिफिकली एचआर के टर्म्स में बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, वहां के जो स्टाफ काम करते हैं उनको एग्जाम्पल लेके आप समझिए और समझाइए कि उनके बिहेवियर में या उनके काम करने के मेथड में क्या चेंजेस लाया जा सकता है जिससे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, ऑब्वियसली होटल इंडस्ट्री इज अ सर्विस सेक्टर, वो इम्प्रूव होगा.
कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, इसमें दिमाग लगाइए। ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं, और नॉर्मल एचआर भी, और बाकी आप मेथड्स जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप सोचिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, और फिर लेट्स हैव अ डिस्कशन। मैम होटल को मैनेज करना है या फिर होटल, आप, मेरे कहने का मतलब है कि किस तरीके से होटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर, यस राइट? मैम। तो तुम बताओ कि चलो अभी का ही एग्जांपल ले लो कि अभी जो विंटर स्पोर्ट्स होगा या हिल स्टेशन पे लोग स्नो देखने जाते हैं, द होटल्स आर कंप्लीटली फ्लडेड। तो उसमें कोई ऐसा होटल जो या तो अपना पैर जमा रहा है, या तो फिर वो बहुत अच्छा है और वो चाहता है कि जाने के बाद मेरा एडवर्टाइजमेंट हो कि इस होटल की सर्विसेज वगैरह चीजें, कस्टमर्स एकदम फुल सेटिस्फाइड होके जाएं, क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है? एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू एचआर। आप एचआर की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब चीजें वो सब रहती हैं, लेकिन आप सिर्फ, क्योंकि हम एचआर पढ़ा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि टीक्यूएम हम एचआर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, तो आई यस गिव यू मैम। 2 minutes, यू थिंक एंड यू राइट। रेडी? रेडी? बोलो। यस मैम। ओके, तो एक एक करके लेट्स हैव अ डिस्कशन कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए। बताइए, आप अपने आप को एक कस्टमर मान लीजिए और उसके बाद इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि आप अगर कस्टमर होंगे तो किन किन चीजों से आपको अच्छा लगेगा, वैल्यू एडिशन होगा आपके पेमेंट का। और दूसरी बात कि आप अभी अपने आप को एम्प्लॉयर मान लीजिए, फिर एम्प्लॉयर जब आप मानेंगे तो आपको आप ये बता पाएंगे कि क्या क्या किया जाना चाहिए आपके होटल में ताकि चीजें इफिशिएंटली हो।
इफेक्टिव और एफिशिएंट का डिफरेंस बताए थे हम आपको, यस मैम। है ना? चलिए बताइए, लेट्स स्टार्ट विद रोहित। रोहित यस मैम। बताओ क्या पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स सोच सकते हो। मैम एज कस्टमर आई वुड लाइक better facility with low prices नो प्राइसेस, ओके, and politeness वेरी गुड। हाँ and staff. हाँ, That's all, ma'am. ओके। उत्सव? मैम वहाँ का हॉस्पिटैलिटी अच्छा होना चाहिए और क्लीननेस होना चाहिए, साफ सुथरा है या नहीं वहाँ पे। और मैम नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। प्रिया? मैम बेटर कम्युनिकेशन, वेरी गुड, बेटर कम्युनिकेशन। हाँ रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट टाइप्स। हाँ, तो वो हॉस्पिटैलिटी comfort, उसने बोला, वो उसने बोला हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए और कंफर्ट, ओके। comfort and polite behavior ये भी हॉस्पिटैलिटी में आया। and मैम बस इतना ही। ठीक है। आशुतोष? मैम ह्यूमन इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, जो भी वहाँ पे कस्टमर आते हैं वो। मैम उसके बाद वो ये जो होटल सर्विसेज होता है वो अच्छे से होना चाहिए, जो कि जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, जो भी कस्टमर आए। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए जिससे उन्हें इजीली कंफर्ट फील हो कि मैं कहीं अच्छे जगह पे आया हूँ, अच्छी चीज जो भी हो वो। मैम जो भी डिसीजन होना चाहिए वो झूठ नहीं होना, जो भी होना चाहिए फैक्ट सही होना चाहिए, इसमें कुछ झूठ नहीं होना चाहिए। और ओके, अभी जब हम डिस्कस करने लगेंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा, आप और पॉइंट्स जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना सोचे उतना अच्छा है। सी, सर्विस सेक्टर के बारे में गुड्स और सर्विस की मार्केटिंग में एक फर्क होता है। गुड्स का आप ट्रायल दिखा सकते हैं, गुड्स आप यूज करके देख सकते हैं कि वो अच्छी, गुड्स को आप जब आप किसी ट्रायल दिखाया जा सकता है गुड्स का। बट सर्विस की मार्केटिंग के साथ एक चीज ये है कि सर्विस इज समथिंग दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस टू नो कि वो कैसा है। जैसे इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर में आता है, देन ये होटल इंडस्ट्री, राइट। सर्विस की मार्केटिंग थोड़ी सी और टफ क्यों हो जाती है, क्योंकि आप इसका ट्रायल नहीं दे सकते हैं until and unless you know experience it first hand, you cannot be sure of it. हाँ, ये माउथ टू वर्ड मार्केटिंग में जाता है डेफिनेटली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। कोई हेयर पार्लर बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना अच्छा है और आपको अच्छा लगा कि नहीं, वो आपको खुद जाकर के देखना होगा। until you experience it first hand, you are not going to give reviews about it. होटल इंडस्ट्री भी ऐसी ही है कि आपको अच्छा फील कराया गया, तो ये चीज एक ऐसी चीज है जो कि मेजर नहीं की जा सकती है। आपको अगर अच्छा फील कराया गया, एक वैल्यू कस्टमर की तरफ फील ट्रीट किया जाता है, तो आप बाहर जाके सबको बोलेंगे कि हाँ, दिस होटल इज वेरी गुड, यू गो देयर, द फैसिलिटीज आर सो गुड, द अरेंजमेंट्स आर वेरी नाइस। अंडरस्टूड? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अगर हम अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, सोचना तो दोनों तरीके से पड़ता है। एम्प्लॉयर को अपने हिसाब से भी सोचना है और कस्टमर के हिसाब से भी सोचना है। एज अ कस्टमर हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि अगर मुझे प्रायोरिटी रखी जाए, मान लो कि मैंने बुकिंग की, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव बुक्ड माई होटल समवेयर, so if I have booked my hotel and until I go there I need to make rearrangements मतलब मैंने, मान लो कि मेरे साथ I am being accompanied by a child और मैंने बुकिंग करते वक्त वो मुझे याद नहीं है, and then I called back on that number, होटल वाले 5 seconds, within 5 seconds picking up कॉल भी इनके TQM में आता है। यानी आप फोन को काउंटर पर रिंग होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हाँ मैम, रिंग हो रहा है फिर कट गया, नो 5 seconds। दी होटल स्टाफ्स दे आर डायरेक्टेड कि आप 5 सेकंड के अंदर कॉल उठाएंगे। तो इससे क्या होगा? इफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको एज अ कस्टमर लगेगा मेरा तेजी से काम हो रहा है,
कोई एक ऑर्डिनरी होटल जहाँ पे कि आपने पहली बार फोन किया, काउंटर पे कोई था नहीं, चलो हटो, अभी दूसरी बार कॉल किया तो फिर वो उन्होंने फोन उठाया, तो फिर कोई रिक्वायर्ड आदमी नहीं था. The person who is sitting on the counter should have all information regarding booking. The database should be updated such that he can retrieve information as soon as any inquiry is made by the customer. Understood? और 5 second picking up calls. दूसरी बात कि जब वो फोन उठाए तो every time he has to pick up the call. In peak seasons हो सकता है कि फोन हर 4 मिनट पे रिंग हो या उससे भी कम. You have to be polite throughout your shift. चाहे कस्टमर्स की कितनी भी लेम इंक्वायरी क्यों ना हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट, क्योंकि हर कस्टमर का उसको कॉल करने का पहला एक्सपीरियंस होगा ना. तुमने कॉल किया, पर मैंने भी, मान लो मैंने 50 लोगों के बाद कॉल किया एंड ही इज अ लिटिल इरिटेटेड, बट मेरे लिए तो वो पहला एक्सपीरियंस है. सो दे आर इंडिकेटेड, दे आर ट्रेन्ड कि कुछ भी हो जाए, यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट. अब दूसरी चीज पे आओ, बुकिंग हो गई, देन दैट पर्सन हैज अराइव्ड, वहां से उस आदमी को रिसीव करना, इस तरीके से रिसीव करना कि ही इज फीलिंग वेरी वेरी अप्रिशिएटेड, ही इज फीलिंग वेरी वेरी वैल्यूड, यू आर अ मेंबर ऑफ आवर होटल, वी वेलकम यू, and then you are accompanied by that person, the hotel staff, to the room, and you're asked about any problems or anything specifically you need. You understanding my point? जिससे आपको लगे कि आपकी हर नीड्स को केटर किया जा सकता है यहाँ पर. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट चीज आप देखिए, छोटी छोटी चीजें, वैल्यू फॉर मनी. आप कितनी भी अच्छी सर्विस दे दीजिए, लेकिन अगर मैंने 3,000 रुपए खर्च किए हैं, देन आई शुड गेट सर्विस मोर देन 3,000 रुपीज इज फाइन, बट लेस देन 3,000 इज नॉट फाइन, राइट? मतलब मैंने अगर 3,000 रुपए किसी रूम की बुकिंग के लिए खर्च किए, तो मुझे उस 3,000 के हिसाब से सर्विस चाहिए. रूम सर्विस शुड बी, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमेशा उनका ये रेगुलर फीचर है. सो द रूम्स शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, क्योंकि क्लीनलीनेस का इशू बहुत सारे कस्टमर्स को होता है. ठीक है, सो दैट क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपर्ली. उनका अलग अलग रूम नंबर्स होता है, लॉन्ड्री का रूम नंबर्स होता है, रेस्टोरेंट्स का रूम नंबर होता है, सर्विसेज का रूम नंबर होता है, रूम सर्विस का नंबर होता है, एंड दे शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड टू पिक अप द फोन इमीडिएटली एंड केटर टू योर नीड्स. आप देख रहे हैं सारे सिस्टम को फास्टन अप किया जा रहा है. अब देखिए, अगर कुछ इन तरीके के जो होटल्स होते हैं ना, इनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा लोग ये लोग ऐड करते हैं पीक सीजन में. जैसे पीक गर्मी का सीजन होगा तो उतने स्टाफ से इनका काम नहीं चलता है. देन पीक विंटर का सीजन होगा तो ये अलग से ऐड करेंगे. अब जब नए स्टाफ को अलग से ऐड किया गया और उनको 4 महीने के लिए ही हायर किया जाएगा, तो क्या उनको सब कुछ के लिए 1 महीने के लिए ट्रेन किया जा सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है. उनको तुरंत काम पे लगाया जाता है. तो वैसे में दे यूज फ्लो चार्ट्स. समझ में आया? इसीलिए थोड़ा इंजीनियरिंग का भी कॉन्सेप्ट लगता है. इन होटल्स दे हैव फ्लो चार्ट्स दैट विल increase the efficiency of work by the hotel staffs. जो नए स्टाफ आए हैं उनको फ्लो चार्ट बनाया जाता है होटल्स में, नीचे उनके बेसमेंट वगैरह पे, ताकि वो सर्विस फास्ट करें. यानी कि उन्होंने अगर एक रूम से बेड और बेडिंग को पिक किया और दूसरे रूम से सबमिट करके वो एक फ्लोर का सारा लॉन्ड्री लेकर के जा रहे हैं, तो उनको ये ढूंढने में या लोगों से कम्युनिकेट करने में टाइम खर्च नहीं करना है. ठीक है, दे विल डायरेक्टली रीच दैट एंड दे विल डायरेक्टली गो टू अनदर वर्क. काम फास्ट करना है, उनको एक दिन में ज्यादा आउटपुट देना है. तो आउटपुट देने के लिए आपको अपना वर्क प्लेस वैसा बनाना होगा जो इजी और कन्वीनियंट हो. समझ में आया? उसके बाद देखिए, होटल वगैरह में क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है. क्यों फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है? होटल की बिल्डिंग आपने देखा ना, होटल वगैरह को डेकोरेट करने की वजह से, ल्योर करने के लिए, कस्टमर्स को अच्छा फील कराने के लिए बहुत सारी चीजें ऐड की हुई रहती है, राइट? लकड़ी का बहुत सारा काम है. तो अब ये बड़ी बिल्डिंग है, तो दिस बिल्डिंग हैज टू बी मेंटेन्ड बोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड. द डेकोर थिंग्स दे हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कंटिन्यूअसली क्लीन्ड, क्योंकि ये सब उनका फिक्स्ड कॉस्ट है ना. तो जो होटल स्टाफ है, क्या उनको सिर्फ रूम की सफाई करनी है? नहीं. They have to work in close coordination with the engineering team of the
of the hotel industry also. वहां पे जो उनकी इंजीनियरिंग टीम है, जो मान लो बिल्डिंग मेंटेन करने में है या बाकी चीजें, जैसे कि तुम बात करो कि वहां पे होटल में बहुत सारा किचन में माइक्रोवेव होगा, एक्वागार्ड्स होगा, एसी होगा, सेंट्रलाइज्ड एसी होगा, ब्लोअर होगा, और भी तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी, मशीन्स, उनका मेंटेनेंस, फास्ट मेंटेनेंस। आप रूम में एसी रूम बुक किया और आपका एसी खराब है, वैसे नहीं चलेगा ना। सो कंटिन्यूअसली वहां के स्टाफ को दे आर केप्ट ऑन टोज। रूम सर्विस पीक सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग रूम में खाना मंगाते हैं। यू नीड टू हायर एक्स्ट्रा स्टाफ्स टू केटर टू द नीड्स दैट टाइम। अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आप फ्लो चार्ट से हर प्रोसेस को एक्सपीडिट करें, क्वेरी सॉल्व करें और हर वो चीज करें जिससे कि फाइनली जब हम वहां उस होटल से अपने हॉलिडे के बाद निकले, देन आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, you feel very happy and satisfied about it. This is the specialty of service sector. You understanding my point? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 4 P's बोला जाता है। 4 P's क्या क्या होता है TQM में? प्लानिंग, पीपल, प्रोसेस, परफॉर्मेंस। प्लानिंग, आप कैसे डिलीवर करेंगे। पीपल, दीज आर द मेन पीपल जो आपको हेल्प करेंगे उन क्वालिटी को डिलीवर करने में। प्रोसेस, यू हैव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्लो चार्ट बनाइए। अच्छा देखो, एक और चीज देखो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी तो होटल वगैरह में भी चेंज होगी। दे आर यूजिंग अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज। पहले होटल्स वगैरह में वो मैनुअल ताला चाबी लॉक करने वाला सिस्टम था, अब सब कुछ कार्ड से होता है। यू नीड टू गेट द कार्ड रिचार्ज। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से होता है, उस कार्ड से ही दरवाजा खुलता है। एंड द गुड थिंग इज कि आप जब वो कार्ड हटाएंगे तो क्या होगा, रूम का सारा लाइट, सारा फैन, एसी, सब कुछ बंद हो जाएगा खुद ही। यानी ये चक्कर खत्म हो गया कि कोई स्टाफ बंद करेगा, या ये चक्कर भी खत्म हो गया कि कोई कस्टमर खुला छोड़ दिया तो उसका बिल बन रहा है दिन भर। Technology is being upgraded and this technology is taking its place everywhere in every business. Technology is fastening up and making the process more effective also and efficient also. Understood? मान लो होटल में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई। देखो, SOP समझते हो? SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी जब तुम कहीं काम करने जाओगे तो तुमको ये बताया जाएगा इस काम को करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है। यानी SOP इतनी मोटी सी फाइल होती है, फाइल के जैसा होता है, उसमें लिखा होता है कि क्या क्या कैसे कैसे होना है। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर लेवल के लिए ही होता है। जैसे मान लो कि स्टाफ है, जो लॉन्ड्री का स्टाफ है, जो बेड अरेंज करता है उसका स्टाफ है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई और बेडिंग का तरीका चेंज हुआ तो क्या SOP चेंज नहीं होगा? होगा मैम, होगा ना। तो उस चीज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर्स चेंज कर दिए एंड देन यू आर द लास्ट टू इम्प्लीमेंट इट। So you have to keep the SOP, keep changing and upgrading according to the new technologies in the organization, which is the hotel industry right now, and keep imparting trainings. इसीलिए continuous training की जरूरत होती है। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं तो उनको efficiently करने के लिए आपको भी हमेशा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? और ये सब जो आप देखते हैं ना कि पोलाइट होना है और हॉस्पिटेबल होना है, अगर कोई कस्टमर झिड़क के बात कर रहा है तो भी यू आर नॉट सपोज टू लूज योर टेम्पर। कोई बात हो गई तो आप पोलाइटली वाया मीडिया थ्रू प्रॉपर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप उसको, जो कस्टमर है उसको मैनेजर तक ले जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि उस मैनेजर का कोई बिटर, उस कस्टमर का कोई बिटर एक्सपीरियंस ना हो आपके ऑर्गेनाइजेशन से। समझ में आई बात? ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। सो TQM, total quality management, is all about 4 P's: planning, people, process and performance. And 3 C's, 3 C's कहा जाता है। कम्युनिकेशन, यानी TQM में कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। कल्चर, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कल्चर। एंड थर्ड, कमिटमेंट, यानी टॉप लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए कि हम ये चेंज ला रहे हैं एंड आई विल मेक श्योर दैट एवरी HR staff in the organization will work towards fulfilling that commitment.
ये एक बहुत कमिटमेंट की चीज है TQM, और हर इंडिविजुअल को कलेक्टिव फॉर्म में कमिटेड होना होता है, तब कोई जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन TQM डिलीवर कर पाती है। अंडरस्टूड? यस मैम। ये था TQM, ये हम आपको समझाने के लिए बताए, मैनेजमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके अलावा एक टर्म मैंने आपको लिखाया, दैट इज क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स का मतलब होता है कि एक ही टाइप का काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बनता है। जनरली दिस ग्रुप इज अप टू 10 persons and these are the higher employees, these are the high level employees who are working in that group, and they come out and discuss if there is any problem। जैसे प्रोडक्शन चल रहा है, कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां के जो 10 बड़े स्टाफ हैं वो आएंगे, डिस्कस करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसको और फर्दर कैसे इंप्रूव किया जाए। हमेशा ये कोशिश रहेगी कि फर्दर इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ प्रोसेस के बारे में नहीं, पीपल के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि अगर स्टाफ को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो ये डिस्कस किया जाएगा कि उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। तो क्वालिटी सर्कल से एक ये चीज होती है कि जब आपका वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, देन यू फील मोर कमिटेड, यू फील मोर सेफ, यू फील मोर acknowledged by the organization and your commitment towards the organization will improve। ठीक है, ये भी एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट में बहुत सारा जापानीज कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ेंगे, और ये कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि बाद में अमेरिका ने भी इसको अपनाया, एंड वी इंडियंस आर आल्सो इनटू अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इट। उसके बाद कौन सा एक कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने? TQM, क्वालिटी सर्कल्स, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सपेंशन, डाउनसाइजिंग या रीडिप्लॉयमेंट, इन चीजों की जरूरत होती है। मैन पावर का यूज कैसे किया जाए एट डिफरेंट प्लेस, ताकि उनसे बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी निकाली जा सके। ओके, समटाइम्स देयर इज अ नीड टू रीसाइज द ऑर्गेनाइजेशन, हमें उतने स्टाफ की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भी आपको होटल इंडस्ट्री की बात बताई कि 4 महीना पीक सीजन रहता है, तो उस 4 महीने में उनको एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना होता है, लेकिन उस 4 महीने के बाद उनको जरूरत नहीं होती है, सो दे फायर दोज पीपल। तो उसकी जरूरत होती है, वरना कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यू हैव BPR। देखो, BPR का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये वर्ड सिर्फ सुनो, ये बहुत रेडिकल चेंज होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी रेडिकल चेंज। इसको सिर्फ रेडिकल चेंज कहा जाता है, कि माने कट्टर चेंज। इसके जो प्रोपाउंडर थे उन्होंने बोला कि डू नॉट जस्ट चेंज, बस चेंज मत कीजिए, डिलीट कीजिए, ओब्लिटरेट मतलब बिल्कुल मिटा दीजिए। टाइम टू टाइम अगर हम नए प्रोसेस की तरफ जाते हैं, देखो बिजनेस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच इज नोन एज अनलर्निंग पार्ट। आप कुछ 10 साल से करते आ रहे हैं या 5 साल से करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। अगर छठे साल आपको कुछ बहुत अच्छा करने को मिला है और सीखने को मिला है, इसका मतलब है कि जो आप 5 साल से प्रोसेस करते आ रहे हैं, दैट हैज टू बी ओब्लिटरेटेड, उसको हटाया जाएगा। अंडरस्टूड? कहने का मतलब कि जो नई चीज आई है और जो मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट चीज है, उसको अपनाइए और थोड़ा रेडिकल होइए, और उन चीजों को कंप्लीटली ओब्लिटरेट कीजिए, हटाइए, जो कि अब यूज के नहीं है या आपके बिजनेस को और ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट। दिस इज द लास्ट वर्ड, एम्पावरमेंट। एम्पावर किसको किया जाता है? विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सुना होगा। यस मैम। क्या होता है एम्पावर, किसको करोगे बताओ? यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट का मतलब एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट है। HR पढ़ा रहे हैं हम तो एम्पावर करने का क्या मतलब होगा? पहले लिटरल मीनिंग में बताओ, क्या मतलब कि हम एम्प्लॉयज को एम्पावर करेंगे? तो गिविंग देयर राइट्स। गिविंग देयर राइट्स, राइट्स तो हाँ ठीक है। और सी एम्पावरमेंट किसको किया जाता है?
We empower somebody who is not currently in charge of taking his own decisions or who has a very little say in any decision which is made by someone else for them, right? Empowerment का क्या मतलब होता है? हम उनको empower करते हैं जो currently empowered नहीं है, अभी empowered नहीं है, और empowered नहीं होने का मतलब है कि उनको empower कीजिए, उनको और राइट्स दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, जिससे कि दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। एक एम्प्लॉय को एम्पावर्ड हम तब मानेंगे जब वो अपने बारे में अच्छा फील करता है, अपने बारे में he is happy about himself, he is motivated himself, और वो बाकी एम्प्लॉयज के साथ कंपैशन और रिस्पेक्ट से बात करता है। एंड देन ही विल बी, ये कहा जाता है कि जो एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय होगा वो उसकी कमिटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति किसी नॉन एम्पावर्ड एम्प्लॉय से ज्यादा होगी। ओके, these were all the 5 processes of dealing with workforce diversity in the organization, and this is something which is being brought about because HR is changing really fast. Fine, this was the introduction, business process re-engineering, और ये एक radical change होता है। With this